Today's discussion is about Hilbert space, and Hilbert space is a very important space, as you know from quantum mechanics. So let's see how we will proceed today. So आज का ये lecture plan है कि I'll start with the definition of the Hilbert space कि Hilbert space है क्या, and then we will discuss its completeness कि completeness का idea क्या है, एक Hilbert space को क्यों complete होना चाहिए और completeness है क्या. So I'll do a conceptual discussion of completeness, the proof. I'll not discuss the proof in general, although I'll do a problem for three-dimensional case to explain the idea of completeness. So okay, completeness will be discussed. Then um, we will see कि after defining Hilbert space, we will see कि दो फेमस हमारे पास केसेस हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर. एक है फ्री पार्टिकल का और दूसरा है बाउंड पार्टिकल का. फॉर एग्जांपल बाउंड पार्टिकल इन एन इनफिनिट पोटेंशियल वेल. तो वी विल सी कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो हिल्बर्ट स्पेस फॉर्म करता है और कौन सा हिल्बर्ट स्पेस नहीं बनाता. सो दिस विल बी डिस्कस्ड एंड देन at the end, ये जो completeness का idea है, I'll try to explain this for a three-dimensional case with the help of the outer product. So we will define the condition for completeness, a mathematical condition for completeness. कि completeness है क्या mathematically. So mathematically it is defined in the form of outer product. So we will discuss कि outer products है क्या in the first place, and then by using those outer products we will explain the idea of completeness. So this is the plan for the day. So let's begin with the definition of the Hilbert space. Hilbert space क्या है? So definition of a Hilbert space. Hilbert space must obey the following conditions. Hilbert space जो है it has to obey certain conditions जो कि ये हैं. Number first, obey all the axioms of a linear vector space. It mean कि Hilbert space को पहले linear vector space होना चाहिए. जो लीनियर वेक्टर स्पेस के जो एक्सियम्स है, जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब किया था कि देयर आर अबाउट 10 एक्सियम्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स टू बी अ वेक्टर स्पेस. तो वो सारे के सारे एक्सियम्स हिल्बर्ट स्पेस को पहले सेटिस्फाई करने होंगे. तो इसका मतलब ये है कि हिल्बर्ट स्पेस को पहले वेक्टर स्पेस होना चाहिए. सो हिल्बर्ट स्पेस must be, Hilbert space is represented by H. So H must be a linear vector space. Linear vector space की सारी properties H को obey कर लेनी चाहिए होंगी. तो in the first place, a Hilbert space must be a linear vector space, and it has to obey all those 10 axioms we described in our first or the second lecture. Then must have a finite inner product. ये बहुत important condition है Hilbert space के ऊपर कि हिल्बर्ट स्पेस के अंदर जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनका इनर प्रोडक्ट फाइनाइट होना चाहिए और वो इनफाइनाइट ना हो. इनर प्रोडक्ट डिफाइंड होना चाहिए हिल्बर्ट स्पेस के अंदर. अगर इस तरह ना हो सो देन वी कैन नॉट say कि we have a Hilbert space. So this is a must condition कि inner product must be defined for a member. For example, psi is a member of Hilbert space, और let's say phi is also a member. तो ये हिल्बर्ट स्पेस के मैंने दो मेंबर ले लिए. They belong to the Hilbert space. अब ये हिल्बर्ट स्पेस को अगर बिलोंग करते हैं तो they must obey this thing कि psi and psi must be equal to finite. ये इनर प्रोडक्ट फाइनाइट आना चाहिए. सिमिलरली ये इनर प्रोडक्ट भी फाइनाइट आना चाहिए, एंड सिमिलरली ये इनर प्रोडक्ट भी फाइनाइट आना चाहिए. और फंक्शन हिल्बर्ट स्पेस इज यूजुअली इन द मोस्ट जनरल फॉर्म. हिल्बर्ट स्पेस इज अ फंक्शन स्पेस. तो ये चीजें जो है दिस इज फाई एंड दिस साई, दे आर यूजुअली फंक्शंस. सो फॉर एग्जांपल साई ऑफ एक्स मेरे पास इस तरह का फंक्शन है. लेट्स से दिस इज एक्स और इसका डिफाइनिंग इंटरवल लेट्स से ये है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ये डिफाइन हुआ है. सो लेट्स चेक कि ये हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर हो सकता है या नहीं. लेट्स चेक. तो इसके लिए चेक क्या होगी? I'll check this result. ये जो साई है इसके लिए मैं ये कंडीशन देखूंगा कि मैं इसका इनर प्रोडक्ट फाइंड करूंगा अंडर दिस लिमिट.
अगर ये इनर प्रोडक्ट फाइनाइट आता है देन आई विल से कि यस ये हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर हो सकता है। अगर ये इनर प्रोडक्ट फाइनाइट नहीं आता देन आई कैन नॉट क्लेम कि ये आपका हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर हो सकता है। सो लेट्स चेक x, ये मैं इसका इनर प्रोडक्ट ले रहा हूँ। सो दिस is actually an integral from minus infinity to infinity x. This is actually a real function, so taking its complex conjugate will not affect it. Minus infinity to infinity, this is actually x square because x star is actually equal to x in this in this special case where the function itself is real. So this is dx and you can see कि इसका आंसर मुझे infinity आता है. So x under this limit, अगर x के ये लिमिट है सो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस, ये हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर नहीं हो सकता। तो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर किस तरह के फंक्शंस होने चाहिए, मैं इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इसको मैं दूसरे वर्ड्स में इस तरह से लिख सकता हूँ कि हिल्बर्ट स्पेस इज अ स्पेस ऑफ स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन। H is a space of a vector space of or a function space of square integrable function, square integrable functions। इसके अंदर स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस होंगे। तो इन जनरल इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि a to b f of x square dx must be finite. This is the condition 2 in a different लैंग्वेज। ये जो आपका कंडीशन 2 है जिसको हमने यहाँ पर इनर प्रोडक्ट के लैंग्वेज में डिफाइन किया है कि हिल्बर्ट स्पेस के अंदर इनर प्रोडक्ट का फाइनाइट होना लाजमी है। तो इस चीज़ को आप इस अल्फाज में भी लिख सकते हैं कि H इज़ अ स्पेस ऑफ स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है हिल्बर्ट स्पेस के लिए। अगर हिल्बर्ट स्पेस ये कंडीशन ओबे नहीं करता, बेशक वो आपका लीनियर वेक्टर स्पेस के सारे कंडीशन ओबे करे, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शंस हो उनको एक्स्ट्रा एक कंडीशन ये भी ओबे करना होगा कि उसके जितने भी फंक्शंस हैं वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होने चाहिए या उनका इनर प्रोडक्ट फाइनाइट आना चाहिए, इन्फिनिट नहीं आना चाहिए। जिस तरह इस केस में ये इन्फिनिट आ गया। हाँ, अगर मैं यहाँ के लिमिट्स चेंज कर दूँ ये वाले, अगर ये फंक्शन जो साई ऑफ एक्स है अगर ये किसी दूसरे इंटरवल पे डिफाइन हुआ है, फॉर एग्जांपल एक्स का जो इंटरवल है, लेट्स से दिस इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स इज लेट्स से डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1, तो फिर मेरे इंटीग्रेशन के लिमिट 0 to 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 0 पुट कर लूंगा, यहाँ पर 1 पुट कर लूंगा, देन दिस विल गिव मी अ फाइनाइट आंसर। तो फिर ये वाला जो x होगा इन दिस लिमिट ये बिलोंग करेगा हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। लेकिन इन द जनरल लिमिट हिल्बर्ट स्पेस के यूजुअली जनरली लिमिट आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होते हैं। और स्पेशल केस के अंदर आप ए टू बी भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम कि आपका प्रॉब्लम किस तरह से डिफाइन हुआ है। एंड वी विल सी इन टुडेज लेक्चर कि अगर फ्री पार्टिकल का केस हम देखेंगे और बाउंड पार्टिकल का केस, तो बाउंड पार्टिकल के केस में ये लिमिट ज़रूरी नहीं है कि ये फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो, लेकिन फ्री पार्टिकल के केस में ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। तो इन जनरल हिल्बर्ट स्पेस के जो लिमिट है दे आर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और ये जो कंडीशन 2 है इसको मैंने दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से लिख लिया कि H इज़ अ स्पेस ऑफ स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है इनको स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर इस तरह नहीं है या इसके अंदर इनर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है, सो देन दे कैन नॉट, दीज फंक्शंस कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। मैथमेटिशियंस कॉल दिस स्पेस एज L2। ये जो हिल्बर्ट स्पेस है mathematicians call it L2, and L is taken from the name of some person, I don't exactly remember, Lebosoji or something like that. So this is the mathematician call this Hilbert space as L2, and this is just a square integrable function. L2 is for the square integrable फंक्शन। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है और ये एक मस्ट कंडीशन है कि आपका जो वेक्टर स्पेस होगा उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे दे मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल और उनका नॉर्म जो है वो एक पॉजिटिव डेफिनेट आना चाहिए।
और या उनका जो इनर प्रोडक्ट है वो डिफाइंड आना चाहिए, वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई दो कंडीशन। थर्ड, हिल्बर्ट स्पेस इज कंप्लीट स्पेस, कि हिल्बर्ट स्पेस को कंप्लीट भी होना चाहिए। नाउ इस कंप्लीटनेस से मतलब क्या है? कंप्लीटनेस से मतलब यह है कि एनी फंक्शन या any continuous function can be expressible या can be expressed या can be expanded, whatever you like। expressed की जगह आप expanded भी लिख सकते हैं, can be expanded। any function can be expressible या can be extended in the basis of the Hilbert space। Hilbert space, this is just like spanning। जिस तरह हमने span डिफाइन किया था अपने वेक्टर स्पेसेस के अंदर, कि आपके जो बेसिस सेट होता है वो पूरा का पूरा जो स्पेस है उसको स्पेन कर सकता हो। तो इसी आइडिया को यहाँ पर कंप्लीटनेस भी कहा जाता है, कि जो हिल्बर्ट स्पेस के बेसिस होंगे उस बेसिस को, उस बेसिस के अंदर हम किसी भी फंक्शन को एक्सप्रेस कर पा सकते हो। मैथमेटिकली इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लेट्स सपोज हिल्बर्ट स्पेस के बेसिस ये हैं, साई एन ये हिल्बर्ट स्पेस के बेसिस है, या इसके लिए कुछ दूसरा वाला नोटेशन ये वाला भी यूज होता है कि फाई एन ये जो किड्स हैं दे बिलोंग टू एच, और ये बेसिस है हिल्बर्ट स्पेस के। तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ द सेट लिख लूँ तो ये इस तरह से होगा, फाई वन, फाई टू, फाई थ्री टेल फाई एन या फाई इन्फिनिटी। यूजुअली हिल्बर्ट स्पेस इज एन इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस, तो ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं ये फंक्शन। यहाँ पर मैंने इसको एन के ऊपर ट्रंकेट कर दिया। तो अगर ये सेट है मेरे पास या ये सेट है, जो भी नोटेशन आप यूज करते हैं आपकी मर्जी है। सॉरी, दिस हैज टू बी देन this is psi 1, this is psi 1, psi 2, psi 3 and till psi n। अगर ये मेरे हिल्बर्ट स्पेसेस के बेसिस हैं तो इन बेसिस को यूज करके मैं किसी भी फंक्शन को भी लिख सकता हूँ इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। सो मैथमेटिकली ये आइडिया इस तरह से आएगा। लेट्स सपोज psi of x एक जनरल फंक्शन है। रिमेंबर दिस इज कैपिटल psi एंड दीज आर स्मॉल लोअर केस साइज, ये वाले। अगर मैं ये बेसिस यूज करता हूँ या मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, आई विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर बोथ। psi इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू n। अगर मैं n अगर n डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस लेता हूँ, इन जनरल इट इज फाइनाइट इनफिनिट डायमेंशनल, तो दिस इज इक्वल टू c n psi n। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कंप्लीटनेस, कि इफ दिस psi of x इज एनी फंक्शन, अगर ये कोई भी फंक्शन है और ये आपके पास हिल्बर्ट स्पेस के बेसिस हैं, और रिमेंबर ये हिल्बर्ट स्पेस के बेसिस आते कहाँ से हैं? You know this from quantum mechanics, you may have done this in your quantum course or you will do it in your quantum mechanics course। ये आपके पास ये जो psi n है ये आपके पास कहाँ से आते हैं? they come from solving टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, TISE। जब आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सो यू गेट ऑल दीज किट्स। ये आपके पास जो किट्स हैं they come from the time independent Schrodinger equation under a specific potential। आप उसके अंदर पोटेंशियल पुट करते हैं, you get your kits, और या स्टेट्स जो हैं ये आपके पास वहाँ से आते हैं। फिर इन स्टेट्स के टर्म्स में आप किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साई ऑफ एक्स एक जनरल सोल्यूशन होता है, और ये वाले जो फंक्शंस हैं, ये जो बेसिस हैं, दीज आर यूजुअली स्पेसिफिक सोल्यूशन। इनको सेपरेबल सोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है ये आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आपके पास आता है। आप जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं, आपका जो श्रोडिंगर इक्वेशन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स अ PDE। जब आप उसको सेपरेट करते हैं टाइम और स्पेस के अंदर, तो जो स्पेस का पार्ट है उसको आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फिर कहते हैं, TISE। और उसके अंदर उससे जो आपको सोल्यूशन मिलते हैं उनको आप स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं।
स्टेशनरी स्टेट्स या सेपरेबल सॉल्यूशन। तो वो सेपरेबल सॉल्यूशन आपके बेसिस की तरह एक्ट करते हैं, वो हिल्बर्ट स्पेस के बेसिस बनाते हैं। और उन बेसिस में आप अगर आप इन बेसिस में किसी भी फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन आप यहाँ पर लिख ले, अगर वो आप इन टर्म्स ऑफ दीज बेसिस एक्सप्रेस कर सके, देन वी विल से कि ये जो बेसिस हैं, दीज बेसिस आर कंप्लीट, कि ये बेसिस हमारे हमारे पास कंप्लीट है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ कंप्लीटनेस। और थोड़ा सा मैं इसके लिए एक मैथमेटिकल कंडीशन फॉर कंप्लीटनेस, mathematical condition for completeness. Let's suppose basis मेरे पास ये है। अगेन मैं दोनों नोटेशन साथ लेके चलूंगा, y2 y3, एंड रिमेंबर these आर फंक्शंस इन जनरल। तो phi n इस तरह से या इस तरह से, psi1 psi2 psi3 टेल psi n। तो अगर मैं हिल्बर्ट स्पेसिस के बेसिस या ये वाला सेट है या ये वाला सेट है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। इससे पहले जो हम लीनियर वेक्टर स्पेसिस के अंदर बेसिस को हम इस तरह से लिखते आ रहे हैं अभी तक, e2 e3 टेल en, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिस जो है वो यूजुअली या तो ये वाले होते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन में लिखे जाते हैं, या इस रिप्रेजेंटेशन में लिखे जाते हैं। ठीक है, और आप इनको किट्स के शेप में भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आप इसके साथ किट्स का सिंबल लगा ले तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लिखने में। आई एम स्किपिंग दैट फॉर द मोमेंट, बट यू मस्ट नो कि इसको इन द फॉर्म ऑफ किट्स भी लिखा जा सकता है इन बेसिस को। तो मैथमेटिकल कंडीशन फॉर कंप्लीटनेस क्या है? अगर ये मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस के बेसिस हैं, ये phi n, they are the basis for the Hilbert space, then मैथमेटिकल कंडीशन ये है कि अगर मैं ये ऑपरेशन कर लूँ phi m and if I add all these products, so I should get identity matrix, identity matrix। इस चीज को कहा जाता है, ये जो मैंने, दिस इज अ किट एंड दिस इज अ ब्रा, अगर ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सो देन इस मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है आउटर प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट। दिस इज अपोजिट ऑफ द इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट में ये इस तरह से मल्टीप्लाई होते थे, अब ये बिल्कुल अपोजिट तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें इसके अंदर ये जो कॉर्नर्स थे डिराक नोटेशन के, ये जो जो ये स्पाइक्स थे वो आउटवर्ड थे दोनों तरफ। अब ये स्पाइक्स जो यहाँ पर है दे आर बोथ इनवर्ड, तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट एक प्रोसेस है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को कहा जाता है आउटर प्रोडक्ट। जब आप हर एक बेसिस के लिए आउटर प्रोडक्ट फाइंड कर ले, फिर उन सबको ऐड कर ले, रिमेंबर यहाँ पर इंडेक्सेस सेम है, ये m और ये m। जब आप ये आउटर प्रोडक्ट फाइंड करें और इन सबको ऐड कर ले फॉर ऑल m, तो इस सम से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, देन वी से के phi m जो सेट है पूरा, दिस इज कंप्लीट सेट। इसमें आप किसी भी फंक्शन को लिख सकते हैं, किसी भी फंक्शन को इसके टर्म्स में आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटनेस का मैथमेटिकल चेक है। अब इसको इन जनरल आप इस केस के लिए प्रूफ कर सकते हैं, अगर आपके पास ये बेसिस स्पेसिफिकली आपको गिवन हो कि इसका फॉर्म क्या है, यू कैन वेरीफाई दिस फॉर योर बेसिस। तो डिस्क्रीट बेसिस के केस में इसका प्रूफ सिंपल है, और मैं इनके लिए तो नहीं करूँगा, बट यहाँ पर मैं इसी लेक्चर के अंदर इन द लास्ट पार्ट में इसको 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए ये वेरीफाई भी कर लूँगा कि अगर मैं आउटर प्रोडक्ट का सम ले लूँ फॉर n dimensional space, sorry, for 3 dimensional space, then I should get an identity matrix। तो ये मैं आज के लेक्चर में 3 डायमेंशनल के लिए वेरीफाई भी कर लूँगा। तब आपको ये आइडिया 3 डायमेंशनल के लिए ये इस तरह से हो जाएगा। अगर मेरे पास ये सम इस तरह से हो कि इसमें सिर्फ 3 टर्म्स हो, m इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक, इस तरह का केस हो, phi m
तो अगर इसके अंदर सिर्फ 3 केसेस हो तो m इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट ले ले इसको, phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 अगर मैं 3 डायमेंशनल के लिए इसको प्रूव करूँ तो ये 3 डायमेंशनल बेसिस मेरे पास होंगे। आई विल डू दिस लेटर इन, बट ये सिर्फ मैं ये एक्सपेंशन खोलने के लिए इसको कर रहा था कि ये एक्सपेंशन आप किस तरह से खोलते हैं और इसका मतलब क्या है। तो इसके अंदर बहुत सारे आउटर प्रोडक्ट्स है, इनफैक्ट m नंबर ऑफ आउटर प्रोडक्ट्स है। और वन थिंग मोर, ये जो आउटर प्रोडक्ट है जब आप इसको परफॉर्म करोगे, जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, इस किट और ब्रा का जो मल्टीप्लीकेशन होगा इस तरीके से, इस मल्टीप्लिकेशन से जो आपको आंसर मिलेगा, दिस विल बी इन जनरल दिस विल बी अ मैट्रिक्स। और ये यहां से जो आपको आंसर मिलता है आउटर इनर प्रोडक्ट से जो आपको आंसर मिलता है, दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, दिस इज यूजुअली अ स्केलर नंबर। ये या तो आपके पास होता है कोई कम्प्लेक्स नंबर या कोई रियल नंबर, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं होता, ये जस्ट अ स्केलर नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर ये जब इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं किट विद अ ब्रा इन दिस फॉर्म, आउटर प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट गिव्स यू अ मैट्रिक्स। तो इससे आपको अलग से एक मैट्रिक्स मिलेगा। लेट मी चेंज द कलर के, थोड़ा सा मैं इस आइडिया को एलेबोरेट कर लूँ। इधर से आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, इससे आपको दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा और इससे आपको तीसरा मैट्रिक्स मिलेगा। जब आप इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड करोगे फॉर 3 डायमेंशनल बेसिस, वी विल डू दिस लेटर। तो जब आप इसको करोगे तो इन तीनों मैट्रिसेस का सम क्या आना चाहिए? इसका सम आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तीनों मैट्रिसेस का सम जो है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देना चाहिए। सो आई विल वेरीफाई दिस लेटर फॉर 3 डायमेंशन। लेकिन इन जनरल किसी भी बेसिस को चेक करने का तरीका यह है कि बेसिस कंप्लीट है या नहीं है, तो उसके लिए आप ये एक्सप्रेशन फाइंड करोगे, ये वाला। आप उसका आउटर प्रोडक्ट ले लोगे हर एक बेसिस का आपस में। रिमेंबर कि आउटर प्रोडक्ट सेम इंडेक्स के साथ आप यहाँ पर ले रहे हैं, डिफरेंट के साथ भी लिया जा सकता है, लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए आप सेम का आउटर प्रोडक्ट लोगे। लाइक यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, जिस तरह यहाँ पर है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। ये डिफाइंड इस तरह से हुआ है। तो इस सारे को जब आप सम करते हो फॉर m can go to infinity or m can be any number 100,000 to 2,000 whatever, तो जनरली इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो जब आप इन सब मैट्रिसेस को ऐड करोगे टर्म बाय टर्म, ये एक मैट्रिक्स होगा या दूसरा या तीसरा, तो आप सबके एडिशन से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। और यहाँ पर ये 3 केस के लिए, ये केस 3 डायमेंशनल के लिए, यहाँ पर आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा वो 3x3 मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 4 हो तो 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, अगर 5 हो तो 5x5, और अगर m हो तो m/m आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास बनना चाहिए। तो ये आपके कंप्लीटनेस का आइडिया है कि आप अपने बेसिस को कैसे चेक करोगे कि मेरे बेसिस कंप्लीट है या नहीं है। तो कंप्लीटनेस का आइडिया ये है। तो अगर आपने ये चेक कर लिया कि आप अपने बेसिस के साथ इस तरह कर ले, इसके मैट्रिसेस फाइंड कर ले और आइडेंटिटी आ जाए, तो देन ये आपका एक मैथमेटिकल प्रूफ होगा कि आपके बेसिस वो है, कंप्लीट है। एट द वेरी एंड दो एक पॉइंट में बताता चलूं कि आपके पास ये जो किट्स होते हैं, ये वाले या ये वाले, आप इसको साई से लिख ले या फाई से लिख ले, these kits belong to the Hilbert space। ये हिल्बर्ट स्पेस के साथ बिलोंग करते हैं। और हिल्बर्ट स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय H। यूजुअली इस तरह का H लिखा जाता है, एक इस तरह का H। और ये जो किट्स ब्रा वेक्टर है, ये या ये वाले, they belong to dual of the Hilbert space, dual of Hilbert space। सो डुअल ऑफ हिल्बर्ट स्पेस को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऊपर छोटा सा d लिख लें, या डुअल ऑफ हिल्बर्ट स्पेस को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा। लेट्स क्विकली समराइज के हिल्बर्ट स्पेस के क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहले तो ये है कि उसको लीनियर वेक्टर स्पेस होना चाहिए, लीनियर वेक्टर स्पेस के जितने भी एग्जाम्स हैं उसको ओबे करे। देन उसके अंदर इनर प्रोडक्ट डिफाइंड होना चाहिए, इनर प्रोडक्ट उसके अंदर फाइनाइट होना चाहिए, और एट द एंड उसको कंप्लीट भी होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन मीन यहाँ पर के स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन,
स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन को आप उसके बेसिस के अंदर एक्सपेंड कर सको. सो स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन, नॉट एनी फंक्शन बट स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन को आप उसके बेसिस के टर्म्स में एक्सपेंड कर सको. स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन, तो यहाँ पर ये जो होगा ये फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा और किसी भी स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन को आप इसके बेसिस में लिख सको. सो दीज आर द थ्री मस्ट कंडीशन फॉर अ वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस.